انواع البنا یعنی بنا کی قسمیں، مبنی کی اقسام، کن حالتوں میں وہ مبنی ہوتا ہے، اس کے مبنی کی کیا حالتیں ہوتی ہیں۔ مثالوں پر غور کیجئے، کم جوادن فی المیدانی، میدان میں کتنے گھوڑے ہیں۔ کم جوادن فی المیدانی، میدان میں کتنے گھوڑے ہیں۔ بکم اشتریت ساعتک، آپ نے اپنی گھڑی کتنے میں خریدی۔ کم تعد ولا تفی، کتنی دفعہ تم وعدہ کرتے ہو اور اسے پورا نہیں کرتے، کتنی دفعہ تم وعدہ کرتے ہو پھر پورا نہیں کرتے۔ اعتدل الجو، فضا معتدل ہوئی۔ حل اعتدل الجو، کیا فضا معتدل ہوئی۔ الجو قد اعتدل، ہوا یقیناً معتدل ہوئی ہے، معتدل ہو چکی ہے۔ خف حیث انت، وہیں کھڑے رہو جہاں تم ہو، جہاں تم ہو وہیں کھڑے رہو۔ خف حیث انت، کھڑے رہو جہاں تم ہو۔ سر الی حیث شئت، چلو یا جاؤ جہاں تم چاہو، چلو جہاں تم چاہو۔ تقیم حیث یقیب الہواء، تم وہاں قیام کرتے ہو جہاں ہوا اچھی ہوتی ہے، تم وہاں قیام کرتے ہو جہاں ہوا اچھی ہوتی ہے۔ کان امسی شدید الحر، کل سخت گرمی تھی۔ زرت الاہرام امسی، میں نے کل اہرام کی زیارت کی یا اہرام دیکھنے گیا تھا۔ ذهبت امسی الی القلعۃ، کل میں قلعہ دیکھنے گیا تھا، یعنی قلعہ جس کو ہم بولتے ہیں، کل میں قلعے کے لیے گیا تھا، کل میں قلعہ کی طرف گیا تھا۔ ان مثالوں پر غور کیجئے، مثالوں کو 4 قسموں میں تقسیم کیجئے۔ پہلی مثالیں وہ ہیں جس میں کم ہے 1 سے 3 تک، دوسری مثالیں وہ ہیں جس میں اعتدلا ہے 4 سے 6 تک، تیسری قسم کی مثالیں وہ ہیں جس میں حیثو ہے 7 سے 9 تک، اور اس کے بعد جو 3 مثالیں ہیں اس میں امسی ہے۔ اس سے پہلے اسباق میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ مبنی وہ ہے جو ایک ہی حالت میں باقی رہتا ہے، آخری حالت اس کی ایک ہی ہوتی ہے، وہ ایک حالت کو لازم پکڑے ہوئے ہوتا ہے۔ تمام تراکیب میں، ہر قسم کی ترکیب میں وہ ایک ہی اعرابی حالت میں ہوتی ہے، اعراب کی ایک حالت ہی اس پر ظاہر رہتی ہے۔ اب یہاں ہم پڑھیں گے کہ وہ کتنی حالتیں ہیں، وہ کون سی حالتیں ہیں جو مبنی کے آخر کو لازم ہوتی ہیں، یعنی وہ کون سی حالتیں ہیں جس میں مبنی کا آخر ہر حالت میں رہتا ہے۔ ان مثالوں پر آپ غور کیجئے۔ پہلی قسم کی مثالوں میں کم پر غور کیجئے، ہر قسم کی ترکیب میں وہ ایک ہی حالت میں ہے اور یہ مبنی ہے کیونکہ وہ تینوں مثالوں میں ایک ہی حالت میں ہے۔ دوسری قسم کی مثال میں اعتدال پر غور کیجئے، وہ بھی مبنی ہے کیونکہ وہ ہر حالت میں ایک ہی حرکت پر ہے۔ اور اسی طرح حیثو کو دیکھیے، تینوں مثالوں میں وہ بھی مبنی ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ وہ ہر ترکیب میں ایک ہی حالت میں ہے۔ اور اسی طرح امسی کو دیکھیے، وہ بھی مبنی ہے اس لیے کہ وہ ہر ترکیب میں ایک ہی حالت میں ہے۔ تو یہ چاروں کلمات کم، اعتدلا، حیثو اور امسی یہ مبنی ہے کیونکہ ایک ہی حالت کو لازم پکڑے ہوئے ہیں، ان کی آخری جو حالت ہے وہ ایک ہی ہے ہر قسم کی ترکیب میں۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ تینوں ایک ہی حالت میں نہیں ہے، یعنی تینوں پہلے میں کم جو ہے سکون کی حالت پر ہے، اور اعتدلا یہ فتح کی حالت پر ہے، حیثو یہ ضمے کی حالت پر ہے، امسی یہ کسرے کی حالت پر ہے۔ تو کم ہمیشہ سکون کو لازم پکڑے ہوئے ہوتا ہے، یعنی ہمیشہ سکون کی حالت میں ہوتا ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں مبنی علی السکون۔ جو مبنی آخری میں سکون کی حالت کو لازم پکڑے ہوتا ہے اس کو
मबनी अला सुकून कहते हैं। एतदला ये हर हालत में इसमें फतह है तो इसलिए इसको मबनी अलल फतह कहते हैं। हैसु हर हालत में इसमें दम्मा होता है, दम्मे को वो पकड़े हुए हैं इसलिए उसको मबनी अलल दम कहते हैं। अमसी हर हालत में ये कसरे को लाजिम पकड़े हुए है इसलिए उसको मबनी अलल सुकून कहते हैं। तो जितने भी कलिमात मबनी होते हैं वो इन चार हालतों में से किसी एक हालत पर मबनी होते हैं, या तो वो मबनी अलल सुकून होंगे या मबनी अलल फतह होंगे या मबनी अलल दम होंगे या मबनी अलल कसर होंगे, इसके अलावा और कोई हालत नहीं होगी। अब इनकी जो हालतें आखिरी हालतें हैं, मबनी अलल दम क्यों होते हैं, अलल कसर क्यों होते हैं, अलल फतह क्यों होते हैं, अलल सुकून क्यों होते हैं, तो इसका कोई कायदा नहीं है। इसका कोई ये अमसी का आपने क्या बताया शेख साहब, किस मबनी पे? अलल कसर, मबनी अलल कसर, कसरा, ठीक है शेख साहब। कसरा पर मबनी। तो इनके मबनी होने के, मबनी अलल फतह या दम अलल कसर होने के, मबनी अलल सुकून या मबनी अलल दम या मबनी अलल फतह या मबनी अलल कसर होने का कोई कायदा नहीं है, बल्कि इसी तरह ये मनकूल है लुगत की किताबों में और इसी तरह अरब उसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये किसी कायदे की बुनियाद पर नहीं बल्कि ये सीमाई है, इसी तरह ये अरबी ज़बान में पाए जाते हैं। अब कवाइद पर आइए और इसकी हालत को मजीद वाज़ेह कर लीजिए। कवाइद की सूरत में जो है ये बात मजीद वाज़ेह हो जाएगी। अल अहवालुल्लती तुलाज़िमु अवाखिरल कलिमातिल मबनिय्यति अर्बउन, वो अहवाल जो के मबनी कलिमात के आखिर में लाजिम होते हैं, वो अहवाल जो के मबनी कलिमात के आखिर लाजिम पकड़े होते हैं वो चार हैं। यानी मबनी हर्फ की आखिरी हालत, मबनी हर्फ के आखिरी हालत, मबनी हर्फ का आखिर जिस हालत पर होता है वो चार किस्म की हालतें हैं। वही सुकून वल फतह व दम्मु वल कसर, वो सुकून है, फतह है, दम्मा है और कसरा है। वो तुसम्मा अनवा अल बिना, और इनको मबनी की अक़साम कहते हैं, मबनी की अक़साम कहते हैं। मबनी की ये चार ही किस्में हैं ये जिनका जिक्र आ चुका। अल कलिमातुल्लती युलाज़िमु अवाखिरहा सुकून, वो कलिमात जिनके आखिर सुकून को, अविल फतह या फतह को, अविल दम या दम्मे को, अविल कसर या कसरे को लाजिम पकड़े होते हैं। युकालु कहा जाता है इन्नहा मबनिय्यतुन अला सुकून, कि वो मबनी अला सुकून है, अविल फतह या मबनी अला फतह है, अविल दम या मबनी अला दम है, अविल कसर या मबनी अला कसर है। तो जिस हालत को लाजिम पकड़े होते हैं उसी हालत के एतबार से उनको मबनी कहा जाता है। अगर वो सुकून की हालत को लाजिम पकड़े हुए हैं तो मबनी अला सुकून कहेंगे, और अगर वो दम की हालत को लाजिम पकड़े होंगे तो उसे मबनी अला दम कहते हैं। आसान सा सबक है, आसान सा सबक है। उसका खुलासा ये है कि मबनी वो हैं जो हर तरकीब में एक ही हालत में होते हैं, एक ही हालत में होते हैं, और जिस हालत में होते हैं वो चार किस्म की हालतें हैं। एक सुकून है, दूसरी फतह है, तीसरी दम है और चौथी कसरा है। इसको मबनी की अक़साम कहते हैं। जिन चार अहवाल में मबनी होते हैं उन्हें मबनी की अक़साम कहते हैं, और जिस हालत में वो मबनी होते हैं उसी हालत के एतबार से उनको मबनी कहा जाता है। अगर सुकून पर मबनी हो तो उनको मबनी अला सुकून कहते हैं, दम पर मबनी हो तो मबनी अला दम कहते हैं, इसी तरह मबनी अला फतह और मबनी अला कसर उनको कहते हैं। ठीक है, सबक वाज़ेह है और सबक में कोई पेचीदगी नहीं। हम ये देख रहे हैं कि जो मबनी होते हैं चाहे वो अफ़ाल हों जैसा कि फ़ेल माज़ी और फ़ेल अम्र है, या फिर हरूफ हों, वो सारे के सारे इन चार हालतों में से किसी एक हालत पर मबनी होंगे, इनसे खारिज कोई हालत नहीं है। अब आगे सबक तमरीनात में आप देखिए और फिर जो सबक आप समझे हैं उसको करने की कोशिश कीजिए। अय्यिन फिल जुमलिल आतियति अल कलिमातल मबनिय्यत अला सुकून, मुतय्यन कीजिए आने वाले जुमलों में वो कलिमात जो मबनी अला सुकून है, वल मबनिय्यत अला फतह, और वो जो मबनी अला फतह है, वल मबनिय्यत अला दम, और वो जो मबनी अला दम है, वल मबनिय्यत अला कसर, और जो मबनी अला कसर है। आने वाले कलिमात में कौन से कलिमात किस पर मबनी है, किस हालत पर मबनी है, उसको आप मुतय्यन कीजिए।
لا यस्ततीउ الانسان ان يعيش منفردا, आदमी अकेला रह नहीं सकता, आदमी तन्हा रह नहीं सकता. अब इसमें देखिए मबनी कौन से कलिमात है देखिए, और फिर वो किस हालत पर मबनी है बताइए. अब तालिबात में कोई एक जवाब दीजिए, इस जुमले में मबनी कौन से कलिमात हैं और वो किस हालत पर मबनी है. जी अन शेख साहब, मबनी अल सुकून. क्या चीज? अन ठीक है, बिल्कुल मबनी अल मबनी सुकून. अल और सुकून इसी सही में. है. और और ला जी ला ये भी मबनी अल सुकून है. तो इसमें दो कलिमात जी हैं, ला और अन, ये दोनों हर्फ हैं और दोनों मबनी अल जी सुकून है. उसके बाद दूसरी मिसाल है देखिए, इस्तराहल मरीदु व नामा नौमन हादियन, मरीज राहत पाया और सुकून की नींद सोया. अब कोई दूसरी तालिबा जवाब दीजिए कि इसमें कौन से कलिमात मबनी है और वो किस हालत पर मबनी है. शेख नामा नामा ये फेल माजी है, मबनी जी, है, और मबनी किस पर है वो? मबनी अलल फतह. मबनी अल फतह. और शेख मुझे ऐसे लग रहा है इस तरह. इस तरह ये भी फेल माजी है जी, और ये भी मबनी मबनी अलल अल फतह. फतह. इसके बाद तलबा में से जवाब दीजिए, इज़ा ज़ारा इंसानुन मरीदन वजब अन यजअल ज़ियारता क़सीरतन, जब कोई इंसान किसी मरीज की जियारत करे तो उस पर वाजिब है कि वो अपनी जियारत को मुख्तसर रखे. तो तालबा में से कोई जवाब दीजिए कि इसमें कौन से कलिमात मबनी है और वो किस हालत पर मबनी है. शेख साहब ज़ारा ज़ारा मबनी है, किस हालत पर मबनी है? मबनी अल फतह है शेख साहब. मबनी अल फतह. और अन भी है, अन भी मबनी है, किस हालत पर मबनी है? मबनियतुन अला सुकून है ये. मबनी अला सुकून है. और शेख इज़ा नहीं होगा और वाजबा. इज़ा भी मबनी है. ये जाला भी तो शेख साहब वो फेल मुदारे नहीं, यजअला तो मुदारे है ना. वाजबा शेख, वाजबा नहीं होगा. वजबा फेल माजी है, मबनी है और मबनी अलल फतह है. और इज़ा भी हर्फ है और वो मबनी है, मबनी अलल सुकून है. ठीक, 4 हो गए इसका मतलब. 4 हो गए. इसके बाद का जुमला तालबा में से कोई और पढ़िए. नहनु नुहिब्बुल वतना व नअमलु अला रफ़इ शानिल बिलाद, हम अपने वतन से मोहब्बत करते हैं और अपने वतन के शान को बुलंद करने की कोशिश करते हैं. इसमें बताइए. शेख नाहनु और अला, नाहनु जो है वो नहीं, नाहनु अला तो शेख गलत. नाहनु मबनी है जी, वो नाहनु किस हालत पर मबनी है? अला दम्मी, अला दम है. और उसके बाद अला मबनी है. अला जी अला मबनी है, वो भी अला नसबी, अला सुकून है वो. अला हाँ, आखिरी में अलिफ है. नुत्क में आखिरी में अलिफ है, नुत्क में आखिरी में अलिफ है बोलने में, और वो सुकून पर जी. नहीं, वहां तो रफा यहाँ फेल माजी तो नहीं है जो मबनी बोले, फेल माजी नहीं. अलबत्ता वाह है, देखिए अत्फ का हर्फ अत्फ है ये, और ये हर्फ है, ये मबनी है और मबनी अलल फतह है. तो शेख हमने ऊपर वाले जुमलों में वाह नहीं किया, मैं यही करना चाहिए. तो वाह जो है हर्फ अत्फ, ये हर्फ है और मबनी अलल फतह है. ठीक है. इसके बाद की तमरीन देखिए. दा कुल्ल इस्मिन मिनल अस्माइल मबनियतिल आतियति फी जुमलिन सलासिन बिहैसु यकूनु फाइलन फिल ऊला व मफऊलन बिही फिस सानिया व मस्बूखन बिहर्फ जर्रिन फिस सालिसा. आने वाले अस्मा में से हर इस्म को, आने वाले मबनी अस्मा में से हर इस्म को 3 जुमलों में रखिए, यानी हर इस्म के 3 जुमले बनाइए. इस तरह के पहले जुमले में वो फाइल हो, दूसरे जुमले में मफूल हो, और तीसरे जुमले में उससे पहले कोई हर्फ जर हो यानी मजरूर हो. तो तालिबात में से कोई बनाइए. मन
من جو اب تک نہیں حصہ لیے ہیں ان میں سے کوئی ایک کیجیے. من سے آپ 3 جملے بنائیے. پہلے میں وہ فاعل کی حالت میں ہو, دوسرے میں وہ مفعول بہ کی حالت میں ہو, اور تیسرے میں اس سے پہلے حرف جر ہو. جی شیخ صاحب ایسے بن جائے گا جاءنی من ضربک. جاءنی من ضربک بالکل بن جائے گا, کیونکہ من یہاں فاعل کی حالت میں ہے. جاء فعل ہو گیا, اور یا یہ نصب کی حالت میں ہے, اور پھر من جو ہے یہ فاعل کی حالت میں ہے. بالکل جاءنی من ضربک یہ جملہ صحیح ہے. اور نصب کی حالت کا جملہ بنائیے. رأیت من نصرک. رأیت من نصرک, رأیت فعل اور فاعل ہو گیا, اور من نصب کی حالت میں ہو گیا. ٹھیک ہے, اس کے بعد لیمن من سے کتب الرسالہ. جی لیمن کتبت الرسالہ. لیمن کتبت الرسالۃ صحیح ہے, بالکل یا صحیح ہے. مررت بمن بکا. مررت بمن بکا, مررت بمن بکا یہ بھی صحیح ہے. تو یہ حالت جر کی مثالیں ہوں گی. بارک اللہ فیکم. اس کے بعد الذی سے جملے بنائیے, 3 جملے. اب شیخ صاحب الذی سے شروع تو نہیں ہو سکتا کوئی جملہ, کیونکہ یہ موصول اس میں موصول ہے. آپ فاعل بنائیے پہلے اس کو. ہاں نہیں, یعنی اس کے پیچھے کچھ لگانا پڑے گا نا پہلے جملہ شروع کر کے, تو پھر اس کو فاعل کے طور پہ استعمال کریں. آپ اس سے من پہلے الذی فعل یشفع لگائیے. عنده الا باذنہ. من ذا الذی, من ذا الذی, ذا الذی یہ جو ہے حالت جر میں ہو گیا, ذا کی وجہ سے مضاف الیہ ہوا ہو. آپ اس کو ایسے بنا سکتے ہیں. ذهب الذی قطعک. ہاں ذهب صحیح ہے, ذهب الذی قطعک. یا پھر جو ہے نجح الذی اجتہد, نجح الذی اجتہد, نجح کامیاب ہوا, الذی جو اجتہد محنت کیا, تو نجح کے بعد وہ فاعل کی حالت میں آ گیا. اب اسے مفعول کی حالت میں لائیے. فعل فاعل شروع میں لائیے, اس کے بعد اس کو مفعول کی حالت میں لائیے. بہت آسان ہے, جیسے ضربت الذی جرح الغنم. ضربت الذی جرح الغنم. ٹھیک ہے, ضربت فعل فاعل آ گیا, اس کے بعد الذی یہ حالت نصب میں ہو گیا, الذی جرح الغنم. ٹھیک ہے. اسی طرح ساعدت الذی یحتاج, اور حالت جر کی مثال دیجیے. حالت جر میں اس سے پہلے کوئی حرف جر لگائیے. جی شیخ صاحب جو بھی آپ نے کہا تھا کہ من ذا الذی, تو وہ بھی حالت جر کی آپ نے کہا تھا مثال ہو گئی. مثال ہو من ذا سکتی ہے. الذی یشفع عنده. ہاں, اور کوئی مثال دیجیے. ضربت الولد من هذا وہ کیا ہے, هذا ضربت الذی نصرک. قلم. ضربت الولد من العصا مثال کی حد تک تو دیجیے, لیکن اس پر عمل مت کیجیے. جی ضربت الولد من العصا ٹھیک ہے. نہیں, اس میں الذی کہاں ہے؟ ہاذا کی من ہاذا. لیکن ابھی الذی کی حالت جر کی مثال دیجیے آپ. اچھا اللہ دی کریں. ذهبت بالذی نصرک. ذهبت بالذی نصرک. نصرک, میں اس کے ساتھ گیا جس نے تمہاری مدد کی تھی. صحیح ہے, باہر پہ جرا. ٹھیک ہے, اب اس کے بعد ہاذا کی مثال. جیسے یہ ابھی جو ضربت الولد بالعصا الذی ہناک, تو ایسے کر کے وہ کر سکتے ہیں اس کو. ضربت الولد الذی ہناک بالعصا. صحیح. اچھا نہیں, ولد کے ساتھ الذی نہیں لگایا, عصا کے ساتھ لگانا چاہ رہی تھی میں, کہ جو ادھر وہ عصا جو ادھر رکھا ہوا ہے اس کے ساتھ مارا. اچھا, تو چیزوں کے لیے عصا الذی استعمال کر سکتے ہیں ہم. ہاں کر سکتے ہیں نا, کیونکہ ٹھیک ہے. ضربت الولد بالعصا الذی ہناک. الذی, ہاں جی اس طرح. جی ٹھیک ہے. ہاذا سے میں تو بھی ہاتھ الاسا کرنا چاہ رہی تھی. نہیں, اس میں تو هذا رمح. ہاذا کی هذا رمح. هذا رمح. ہاذا رمح یہ نیزہ ہے. یہ حالت
रफा की मिसाल हो गई। ठीक है, उसके बाद फेल फाइल लाइए आप इश्तरे तो हाज़ल किताब मिन अस्सूक़ी, इस तरह फेल फाइल लाइए, जुमला आसानी से बन जाएगा। बारकल्लाहु फीक। उसके बाद जर की मिसाल ज़रबतुल वलद बिहाज़ल असा, इससे पहले आगे होगी। हाँ सही है। उसके बाद हाउलाई देखिए, जाअनी हाउलाई, जाअनी हाउलाई रफा की हालत में है वो। ठीक है, उसके बाद राइतु हाउलाई, रायतु हाउलाई नसब की हालत में है। उसके बाद मररतु बिहाउलाई, मररतु बिहाउलाई, बा हरफ जर हाउलाई से पहले आया तो वो हालत मजरूर हो गया। ठीक है, ये मिसालें हो गई। इसके बाद की तमरीन जरा तेजी से कीजिए। ईती बिजुमलतैनि फी कुल्लि मिनहुमा फ़िअलुन मबनियुन अला सुकून, दो जुमले लाइए जिसमें से हर एक में एक फेल हो जो मबनी अला सुकून हो। मबनी अला सुकून तो फिर फेल अमरी हो सकता है ना, तो फेल अमरी की कोई दो मिसालें लाइए। इज़रिब बिअसाकल हजर, इज़रिब बिअसाकल हजर, और इफ्तहिल बाबा, इफ्तहिल बाबा, बिल्कुल सही है, बारकल्लाहु फीकुम। उसके बाद फसल्ली लिरब्बिका वनहर, फसल्ली लिरब्बिका वनहर, वनहर सही है। उसके बाद ईती बिजुमलतैनि फी कुल्लि मिनहुमा फ़िअलुन मबनियुन अला सुकून अलल फत्ह, दो जुमले लाइए जिसमें फेल जो है मबनी अलल फत्ह हो। तो जाहिर है कि कौन सा फेल है जो मबनी अलल फत्ह होता है? मावी, दराबा, जैसे दराबा। फेल मादी से कोई मिसाल दीजिए, हमेशा हमेशा जराबा पर मत रखिए, कोई और मिसाल दीजिए। ज़राअल कुतना, ज़राअल फल्लाहुल कुतना, ज़राअल फल्लाहुल कुतना। ठीक है, उसके बाद कतबल मुदर्रिस अला सबूरती, कसरल नज्जारु खशबा, जी कसरल नज्जारुल खशबा, ठीक है, हाँ सही है मिसाल। उसके बाद जो है ईती बिजुमलतैनि फी कुल्लि मिनहुमा हर्फुन मबनियुन अला सुकून, दो जुमले लाइए जिसमें से हर एक में एक हर्फ हो जो मबनी अला सुकून हो। अल किताबु फिल हकीबती, फी इसमें इस्तेमाल है। अल किताबु फिल हकीबती, फी मबनी अला सुकून है, बिल्कुल। अल अस्फूरु युगरिदु अला शजरती, अल अस्फूरु युगरिदु अला शजरती, अला हर्फ जर है, मबनी अला सुकून है। ठीक है, मेरे ख्याल से यहाँ रुकते हैं, बाकी की मिसालें आप लोग कर लेंगे, ये सबक इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा। मेरे ख्याल से हर तमरीन को अगर सही तौर पर करेंगे ना तो इसी हिसाब से किताब आगे बढ़ती है कि एक सबक करने के बाद दूसरा सबक फिर मुश्किल नहीं लगता। लेकिन अगर वो उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे और उसको पढ़ेंगे नहीं तो फिर वो मुश्किल होगी। वरना इसी तरतीब से किताब बनाई जाती है कि एक सबक के बाद दूसरा सबक बिल्कुल उसी हिसाब से चलता है। शेख आमतौर पे इसमें जो चैप्टर पढ़ाया जाता है तमरीन बिल्कुल उससे बिल्कुल मुख्तलिफ लगती है कि हम उसमें से कुछ थोड़ा समझ लें, लेकिन दोनों मुख्तलिफ होती हैं बिल्कुल। इस तमरीन किससे मुख्तलिफ होती है? शेख जो जी सबक से थोड़ी सी ना, मतलब जो मिसालें हैं ना वो थोड़ी सी बिल्कुल डिफरेंट हो जाती हैं कभी कभी। हाँ, वो जरा सा तवस्सु होता है ना तमरीन के लिए, क्योंकि जितना हम सबक से सुनते हैं तमरीन में उसकी प्रैक्टिस करते हुए मजीद कुछ उसमें इजाफा करते हैं जी मश्क का।